خانہ کعبہ پہ بارش ہو رہی ہو اور خانہ کعبہ کی چھت پہ بارش کے قطرے گر رہے ہوں تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے۔ ایران میں چلے جاؤ، یہ تصویر آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے۔ منگل کا دن گزار کے جو بدھ کی شب آئے گی مسجد جمکران میں رات کے کسی وقت میں امام آتے ہیں۔ بدھ والے دن عراق کے نجف چلے جاؤ، نجف کے مضافات میں ایک مسجد ہے، مسجد سہلا، وہاں پر تواتر کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ بدھ والے دن امام وہاں پر آتے ہیں۔ شب جمعہ صرف امام ہی نہیں، ہر نبی کربلا میں آتا ہے۔ جمعہ کے روز حدیث کہتی ہے کہ امام زمانہ نجف میں ہوتے ہیں، ہر میں امیر المومنین میں اپنا دن گزارتے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کے لیے حدیث کہتی ہے کہ وہ آئمہ بقیہ کی قبروں پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی واضح نشانیاں ہیں امام سے ملاقات کی۔ اس شخص نے ان تمام حدیثوں کو اکٹھا کیا، کبھی کربلا بیٹھ جاتا تھا، کبھی نجف چلا جاتا تھا، کبھی بقیہ چلا جاتا تھا، روتا رہا روتا رہا روتا رہا، اور 6 سال گزر گئے۔ 6 سال گزرنے کے بعد حج کے ایام میں مکہ کے باہر بیٹھا ہوا تھا، یہاں ایک خوبصورت جوان، حسین و جمیل جوان قریب آیا، اس نے اس کو آتے دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ جوان کے بعد جو مجھے سمجھ رہا ہے میں وہ نہیں، اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ کون؟ فرمایا سرکار صاحب الامر نے تمہیں یاد کیا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور طائف کے پہاڑ پہ لے گیا۔ اس نے طائف کے پہاڑ پہ دیکھا کہ اون کا ایک خیمہ ہے جس میں امام تشریف فرما ہے۔ اس شخص نے اشارہ کیا کہ امام وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ابراہیم نامی شخص روتا ہوا، سید حسن ابتہی نے اپنی کتاب ملاقات با امام زمانہ میں اس کا تفصیلی واقعہ لکھا، میں نتیجہ نکالا۔ دوڑ کے گیا اور جا کے امام کے خیمے میں داخل ہوا، مولا قدموں میں لپٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ سوال کرتا، مولا نے سوال کیا کیا؟ ابراہیم تم نے آنے میں دیر کیوں کی؟ قدموں سے لپٹ کے کہتا، مولا 6 سال گزر گئے آپ کو ڈھونڈتے، کون سی جگہ ہے جہاں میں نے آپ کو نہیں ڈھونڈا؟ آپ مجھے ملے نہیں اور آپ کہتے میں نے دیر کی۔ امام فرماتے کیوں ڈھونڈتا رہا مجھے دوسری جگہوں پہ جا کے؟ میں تو اپنے ہر شیعہ کے گھر آتا ہوں، میں تو تمہارے روزمرہ کے امور کو دیکھتا ہوں۔ تمہارے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو سب سے پہلا مہمان میں ہوتا ہوں، تمہارے گھر میں کوئی غم ہوتا ہے تو سب سے پہلا میں آتا ہوں۔ امام فرماتے ابراہیم میں ایک لمحے کے لیے اپنی نظر تم سے ہٹا لوں، یہ لوگ تمہیں خونخوار درندوں کی طرح کھا جائیں، یہ میری نظر ہے جو تمہیں دنیا سے بچائے ہوئے ہے۔ جب میں تمہارے اتنا قریب ہوں تو تم نے یہ یقین کیسے کر لیا کہ تم مجھے مل نہیں سکتے؟ سرکار وارث زمانہ کے بارے میں ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے تو ہر شیعہ دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی امام سے ملاقات ہوگی، ملاقات ہے، پہچانتے نہیں ہے، اور پہچاننے کی نہ پہچاننے کی وجہ ناقص معرفت، معرفت کا نہ ہونا امام کو نہ پہچاننے کی دلیل ہے۔ لے بچوں آخری سوال کا جواب دیتے کہ امام غیبت میں کیوں ہے؟ اسرار غیبت کیا ہے؟ غیبت کا راز کیا ہے؟ کیا امام اپنی مرضی کی وجہ سے غیبت میں ہے؟ اس غیبت میں راز کیا ہے کہ اللہ نے 11 اماموں کو غیبت میں نہیں رکھا، 12ویں کو کیوں غیبت میں رکھا؟ آپ آئیے 12ویں کی غیبت سمجھنے سے پہلے امام کے حالات دیکھو۔ 25 سال اپنی زندگی کے مولا علی کو تنہائی میں گزارنے پڑے۔ اس 25 سال کو پڑھنا تو نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ پڑھنا۔ مولا فرماتے وہ 25 سال ایسے تھے جیسے میری آنکھ میں تنکا ہو اور میرے گلے میں ہڈی ہو۔ مولا فرماتے اس 25 سال کے بارے میں علی فرماتے میں نے وہ زندگی کے ایام ایسے گزارے کہ جوان پہ آتے تو ضعیف ہو جاتا اور ضعیف پہ آتے تو اسے موت آ جاتی۔ وہ 25 سال امام موجود ہیں اور لوگ اپنے امام سے غافل ہیں۔ تو کیا کیا مولا امیر المومنین نے؟ اپنے آپ پر اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیا۔ موجود ہیں امام اور اس نعمت سے مدینے کے لوگ محروم ہیں کہ وہ امام حق کے پیچھے نماز ادا کر سکیں۔ آپ کو بھی دارالسلام میں پتہ چل جائے کہ عراق سے کوئی مرجع کو مجتہد دارالسلام کے وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ جامعہ مسجد میں مغربین کی نماز پڑھائیں گے۔ کتنے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ میں نماز پیچھے پڑھوں؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی میں نماز پیچھے پڑھوں۔ جو سرکار امام حسین علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھاتے ہیں وہ دارالسلام آئے ہیں ظہرین کی نماز پڑھائیں گے، امٹ پڑے گی مسجد۔ اور کیسے غافل وہ لوگ تھے کہ علی موجود ہیں اور وہ لوگ امیر المومنین کے پیچھے نماز ادا نہیں کر سکتے، امیر المومنین سے جا کے شریعت نہیں پوچھ سکتے، اور وہ امام اپنے گھر کے اندر کنویں میں منہ دے کے خطبے جاری کر رہا ہے۔ کوفہ میں گئے آپ لوگ تو جا کے دیکھے گا مولا علی کے گھر کے اندر جو کنواں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ امام اس کنویں کے اندر منہ دے کے خطبے جاری کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا علی یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا سننے والا کہاں ہی کوئی نہیں ہے، علی کس سے گفتگو کرے، علی کس سے خطاب کرے؟ اس کے بعد امام حسن کا دور، مخلصین کی کمی، امام کو مدائن میں جا کے پناہ لینی پڑی۔ سب سے زیادہ تعداد میں جو کسی امام کو انصار میسر ہوئے وہ حسین ہیں جنہیں 72 ملے۔ یہ سب سے بڑی فگر ہے جو کسی امام کو نصیب ہوئی، وہ 72 ہے جو امام حسین کو ملے۔ امام زین العابدین زندان، امام محمد باقر گھر کے اندر محصور۔ پھر ایک امام ایسا آیا جس امام کو موقع ملا کہ بنی امیہ اور بنی عباس لڑ رہے ہیں تو اس نے دنیا کو فوراً علم پھیلانا شروع کر دیا۔ آج پوری دنیا میں جتنا علم ہے یہ اسی چند سالوں کی وجہ ہے جو امام جعفر صادق نے پھیلایا۔ حضور جب تک اسرار غیبت نہیں سمجھو گے تو پھر آپ کو امام کے لیے الجل کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ناقص معرفت کے ساتھ الجل الجل الجل، جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ناقص معرفت کے ساتھ امام کو بلاؤ گے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوفے والوں کے خط تھے۔ کوفہ والوں کو بھی بڑی جلدی تھی کہ حسین آ جائیں، لیکن معرفت ہی نہیں تھی۔ یہ ناقص معرفت کی دلیل تھی کہ رات کی آخری پہر میں ابن زیاد ہاشمی لباس پہن کے کوفہ میں داخل ہوتا ہے اور پورا کوفہ ابن زیاد کے گھوڑے کے آگے آ جاتا ہے کہ شاید حسین آ گئے۔ اب میں جملہ لپیٹ کے کہوں گا شاید کوئی سمجھ سکے،
یہ ناقص معرفت کی دلیل ہوتی ہے. معرفت نہ ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیتے ہیں. کوئی بندہ ہو جو اس سطر کی قیمت مجھے ادا کرے. یہ امام یہ ناقص معرفت کی دلیل ہے کہ ابن زیاد بھی لباس امام پہن کے آ جائے, لوگ اسے بھی امام سمجھنا شروع کر دیں گے. لیکن کوفے میں چند لوگ ایسے تھے جنہیں معرفت تھی. کوفے کے رہنے والی عورت کے دروازے پہ عورت نے دستک دی, حسین آ گئے, جلدی گھر سے باہر آ. اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا, دیکھنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر. اس نے یہ حسین نہیں ہے. ابن زیاد کے چہرے پہ نقاب تھا, اس کے سر پہ جو ہاشمی امامہ پہنتے وہ امامہ تھا. اس عورت نے کہا تجھے کیسے پتا یہ حسین نہیں ہے؟ اس نے کہا حسین ہوتے تو رات کی تاریکی میں نہ آتے. یہ رسول کا نواسا ہے جو مکہ کے باہر اس لیے بیٹھ گیا تھا کہ ابھی مکہ کے لوگ سوئے ہوئے, میں دن کے وقت مکہ میں داخل ہوں گا. یہ حسین ہوتا تو رات کی تاریکی میں آتا. یہ معرفت کی تھی, اسے خبر تھی کہ امام نے کب آنا ہے, کیسے آنا ہے اور کہاں آنا ہے. الاجل الاجل الاجل. لیکن آپ کو اسرار غیبت کا نہیں پتا کہ امام غیبت میں کیوں ہے. 11 امام اس دنیا میں اپنی مدت پوری کر کے زہر سے شہید کیے گئے, تلوار سے قتل کیے گئے. کیوں مار دیے گئے؟ مخلصین کی کمی. محبین تو تھے, مخلصین نہیں تھے. دعوی محبت کرنے والے تو لاکھوں تھے, اخلاص دکھانے والے تھوڑے تھے. امام کی غیبت طولانی ہوتی جا رہی ہے, لمبی ہوتی جا رہی ہے, لمبی ہوتی جا رہی ہے. صرف کس وجہ سے؟ مخلصین کی کمی ہے, اخلاص کی کمی ہے, خلوص کی کمی ہے. امام سے لینے والے لاکھوں ہیں, دینے والا کوئی نہیں. ہم تو اپنی خواہشیں امام کے پاس پہنچاتے ہیں نا. ہم تو کربلا بھی حسین کی ذریعے پہ جائیں تو ہمارے پاس ایک خواہشات کی لمبی لسٹ ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میں نے علم پہ جب بھی کوئی چراغ دیکھا ہے تو دیا جلتا ہوا دیکھا ہے, وہ منت کا دیکھا ہے, محبت کا نہیں دیکھا. لوگ منتوں کے چراغ علم پہ جلاتے ہیں, خواہشات کے سیب ذریعے پہ چڑھائے جاتے ہیں. کبھی کسی نے محبت اور عشق کا چراغ تو نہیں جلایا. ہر ایک نے امام سے یہ تو پوچھا ہے کہ مولا مجھے یہ چاہیے, کسی نے یہ تو نہیں پوچھا کہ مولا تجھے کیا چاہیے. ہر ایک نے یہ تو کہا سینہ چوڑا کر کے ہمارا امام ایسا ہے, کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ایسے ہیں. مخلصین کی کمی غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ ہے. غیبت طولانی ہو رہی ہے. اب آخر میں کیونکہ میں یہ موضوع اتنا ہے کہ اس میں 5 مجالس کم از کم 5 مجلسیں ہوں. ایک سرکاری قائم پہ پڑھی جائے, ایک غیبت کے اسرار پڑھے جائیں, ایک قرب ظہور کی علامات پڑھی جائیں, ظہور پڑھا جائے. اب ایک محفل میں کتنا کچھ سمیٹ سکتا ہوں, بس بڑی جلدی میں ختم کروں گا. امام کے ظہور کی علامات میں سے کچھ علامات حتمی ہیں, کچھ غیر حتمی ہیں. جب بھی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے پوری دنیا سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں امام کے ظہور کی علامت. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنی حدیث کی کتابوں میں اہل علم تشریف فرمائے, جتنی حدیث کی کتابوں میں نشانیاں لکھی ہیں وہ قرب ظہور کی ہیں, عین ظہور کی نہیں. یعنی کہ ظہور کا ٹائم آنے والا ہو جائے گا, یہ نہیں ہے کہ اسی لمحے ظہور ہو جائے گا. جو امام کے ظہور کی علامت ہے کہ جس سال امام کا ظہور ہوگا وہ 5 ہیں. اس کے بعد جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں میں فضائل امام ہی پڑھوں. اچھا ان کو توقع یہ ہے کہ میں نا فل نارو والی مجلس پڑھوں اور وہ والداد اور یہ, لیکن میں یہ چند چیزیں ضروری سمجھتا ہوں. ان کو حکم ہے کہ فضائل امام علی پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں خیبر شروع کر دیتا ہوں. سفین پڑھنے کا ہنر مجھے مولا نے بڑا اچھا دیا ہے. تو میں تو یہ بات ہے کہ پیغام تک پہنچا رہا ہوں. یہ بزرگ تشریف فرما ہے, اہل علم تشریف فرما ہے, تاکہ میرے آنے کا اتنا دور دراز سے سفر کر کے آؤں, کوئی ایک مقصد تو پورا ہو. داد پوری دنیا سے لیتے ہیں, واہ واہ پوری دنیا سے کرواتے ہیں, لیکن موضوع ایسا ہے سر کیونکہ میں آیا ہی نیام میں ہوں سرکار قائم کی نسبت کے ساتھ. تو امام کے ظہور کی جو علامت, جس سال امام کا ظہور ہوگا وہ 5 ہیں. باقی جتنی علامات ہیں, مرد عورتوں کی شبیہ ہو جائیں گی, عورتیں مردوں کی طرح ہو جائیں گی, دنیا میں سود بڑھ جائے گا, مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی لیکن نمازی نہیں ہوں گے. یہ جتنی بھی سینکڑوں کی تعداد میں علامات ہیں, یہ وہ علامات ہیں جو ظہور کے زمانے سے پہلے ہونی شروع ہو جائیں گے. وہ کب سے ہو رہی ہیں یہ کوئی نہیں پتا. کبھی کوئی نشانی پوری ہو جاتی, کبھی کوئی نشانی پوری ہو جاتی, کبھی کوئی نشانی. لیکن جس سال امام کا ظہور ہوگا وہ 5 نشانی ہیں, وہ نوٹ کر لینا. یمانی کا خروج, سفیانی کا خروج, وادی بیدا میں زمین کا دھنس جانا, نفس زکیہ کا قتل ہو جانا, اور جمادی اور اس سال رمضان کے مہینے میں 2 گرہن اکٹھے ہونا. یہ 5 علامتیں ہیں جو اسی سال ہوں گی جس سال امام ظہور فرمائیں گے. میری دعا ہے کہ یہی وہ سال ہو. اب تو مدت بڑھتی جا رہی ہے اور بے چینی اور کرب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جس سال امام کا ظہور ہوگا اس سال کے لیے کثرت کے ساتھ حدیث ہیں جو حتمی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس سال جمادی الثانی کے آخر میں بارشیں ہونی شروع ہوں گی اور رجب کے پہلے 10 دنوں تک مسلسل جاری رہیں گی. اتنی بارشیں زمین پہ ہوں گی کہ قبروں کے اندر رہنے والے مردوں کے ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت آنا شروع ہو جائے گا. غیبت نعمانی اٹھا کے دیکھ لو, غیبت توسی اٹھا کے دیکھ لو, کمال دین و تمام نعمت شیخ صدوق اٹھا کے دیکھو, جتنی غیبت کی کتابیں ان تمام کو کمپائل کر کے نتیجہ دینے لگا. جب جمادی الثانی اور رجب میں یہ بارشیں ہوں گی تو پھر اس سال کے رمضان میں 1 مہینے میں 2 گرہن لگیں گے. وسط میں رمضان کے مڈ میں سورج گرہن آئے گا اور آخر میں چاند گرہن آئے گا. یہ حضرت آدم سے لے کے اس لمحے تک پہلی دفعہ ہوگا, ورنہ ہمیشہ چاند گرہن مڈ میں آتا ہے اور سورج گرہن بعد میں. لیکن یہاں سورج گرہن پہلے ہوگا اور چاند گرہن بعد میں آئے گا. جس سال وہ کام ہو جائے گا تو اسی رمضان کے بعد
सुफियानी का खरूज हो जाएगा, यमानी का खरूज हो जाएगा और इमाम ज़ाहिर हो जाएंगे खाना काबा से मशरक की तरफ से, सर पे रसूल वाला अमामा पहने हुए, अंगुश्तरी सुलेमान को अपने हाथों में पहने हुए, असाए मूसा को अपने दाएं हाथ में उठाए हुए, अली का लिबास अपने बदन पे ज़ेब-ए-तन किए हुए, शीश का जूता पहने हुए मेरे मौला सरकार ज़माना मशरक की तरफ से आएंगे और खाना काबा की दीवार पे अपना हाथ रखेंगे। खाना काबा की दीवार पे अपना हाथ रखेंगे, आसमान से एक निदा आएगी। जिब्राइल ज़माने वालों को बता के कहेगा हक आ गया, बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने ही के लिए था। जिब्राइल ज़मीन पे नाज़िल होना शुरू हो जाएगा और मलाइका की एक पूरी सफ ज़मीन पे आएगी। सरकार कायम खाना काबा की छत पे खड़े होकर एक निदा देंगे। वो आवाज़ मशरक से लेके मगरब तक रहने वाले लोग अपने कानों से सुनेंगे। जैसे जिस जुबान को समझते होंगे उस जुबान में इमाम की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाएगी। उस आवाज़ का कानों तक आना तो 3 ग्रोहों में मखलूक तकसीम हो जाएगी। पहले ये कहेंगे ये आवाज़ इमाम की हो नहीं सकती, दूसरे ये कहेंगे कि पहले हमें कुछ अमूर सर अंजाम देने, फिर इमाम की तरफ जाना है, तीसरे वो लोग होंगे जो ही इमाम की आवाज कानों से टकराएगी ये लब्बैक महदी कहकर अपने घरों से उठेंगे। पहला कदम घर में होगा, दूसरा मक्का में इमाम के कदमों पे होगा। सरकार वारिस ज़माना लब्बैक 313 इमाम के नासरीन ज़ाहिर हो जाएंगे। अच्छा, बात शियों को यह भी गलतफहमी है कि 313 पूरे होने तो इमाम ने आना है। 313 पूरे हैं, 313 के नाम और मुल्क भी लिखे हुए हैं। किसने किस मुल्क से आना ये मौला अली बता गए अपने दौर में। 313 इमाम के लश्कर के कमांडर हैं, लश्कर नहीं, लश्कर तो हजारों की सूरत में होगा। 313 इमाम के साथ आ जाएंगे और 313 के साथ 4 नबी इमाम के साथ जमीन पे उतर आएंगे। उन 4 नबियों को जमीन पे उतरना होगा। जमीन पे उस वक्त सबसे ज्यादा हुकूमत ईसाइयों के पास होगी। इस वक्त भी जमीन पे सबसे ज्यादा हुकूमत किनके पास है? ईसाइयों के पास। ईसाई क्या, उनका अकीदा क्या है? ईसा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह इसलिए ईसा को चौथे आसमान पे रोके हुए। खुदा को खबर है कि 12वें के ज़हूर से पहले जमीन पर ईसाई हुकूमत कर रहे होंगे। नसरानियों की हुकूमत सबसे ज्यादा होगी। जो ही जनाब ईसा आएंगे और ईसा बैतुल मक़दस के मीनार से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के इमाम ज़माना के करीब आ जाएंगे और वक्त नमाज करीब आ जाएगा। जो ही वक्त नमाज करीब होगा ईसा के इमाम के पीछे खड़े हो जाएंगे और जनाब ईसा इस हालत में आएंगे कि जनाब ईसा के सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे और वाकई इमाम ज़माना के पीछे खड़े होंगे। सरकार कायम उन्हें पीछे मुड़ के देखेंगे और पीछे मुड़ के मरियम का बेटा बतूल ज़्यादा आगे और आगे आके नमाज पढ़ा। ईसा काम के कहेगा मेरी जरूरत क्या है, मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मरियम का बेटा पीछे खड़े होगा, ज़हरा का बेटा आगे खड़ा होगा। मेरे 12वें के कदमों में ईसा नबी अपना सर रखेगा, सजदा करके ज़माने को बताएगा जाहिलो अपने अकीदा दुरुस्त करो। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप किसी बुत के पीछे कैसे पढ़ता? जिसके आखिरी बेटे ने ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पढ़ी। सरकार कायम नमाज पढ़ेंगे और ईसा कदमों पे सर रख के नमाज खत्म करेंगे। जब जनाब ईसा नमाज खत्म करेंगे और वो पूरी दुनिया में जो ईसाई हुकूमत कर रहे होंगे वो इंतजार कर रहे होंगे ईसा का। और ईसा आके कहेगा ना सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत तुम पर मेरा सलाम। ईसाई कहेंगे हम तो तुझे अल्लाह का बेटा समझते थे, तेरी भी कोई हुज्जत है? बगैर किसी रुकावट के वो 12वें के हाथ पे बैत कर लेंगे। सबसे पहले जमीन पर आके जो बैत करेगा इमाम के हाथों पे वो हजरत जिब्राइल अमीन होंगे। जाओ जाके हदीस की किताबें उठा के देख लो, आदम से लेके 11वें तक जिब्राइल ने किसी के हाथ पे बैत नहीं की। वो शागिर्द अली जरूर है, बैत वो सरकार कायम की करेगा। एक पर मक्का में होगा, दूसरा बैतुल मक़दस में होगा। आवाज देगा जिब्राइल अमीन, जमीन से इमाम के शिया सिमटने शुरू हो जाएंगे। जमीन फासले समेटने शुरू कर देगी। 10,000 का पहला लश्कर इमाम के पास पहुंच जाएगा। 10,000 के पहले लश्कर का इमाम के पास पहुंचना होगा। इमाम मक्का से मदीना की तरफ बढ़ेंगे। मदीना की तरफ बढ़ के इमाम अपने इंतकाम का आगाज करेंगे। अब मैंने मदीना से इंतकाम का आगाज करना चाहे तो मुझे चेहरे यहां पर खिले हुए चाहिए। इमाम मदीना से अपने इंतकाम का आगाज करेंगे और इमाम मदीना में जाएंगे, रोजा रसूल की ज़ियारत करेंगे। और रोजा रसूल की ज़ियारत करने के बाद, अब इससे ज्यादा अच्छा उर्दू अदब का जुमला मेरे पास नहीं है, कब्र रसूल की ज़ियारत करने के बाद इमाम रोजा रसूल की सफाई करेंगे। इमाम रोजा रसूल से सफाई करेंगे। इमाम कुछ कब्रों को शिगाफ्ता करेंगे, उन कब्रों से मुर्दों को निकालेंगे। मुर्दों को निकालने के बाद इमाम एक दरख्त के साथ उन्हें लटका देंगे। खुश्क दरख्त के साथ उनके बदन का लटकना होगा या उनके बदन के लटकने के साथ उस दरख्त में दोबारा पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। उन दरख्तों का दोबारा सरसब्ज़ शदाब होना शुरू होगा। या कुछ शिया देख के कहेंगे हम तो इन्हें बुरा समझते थे, लेकिन इनके बदन खुश्क दरख्त के साथ लटकाए तो सरसब्ज़ शदाब हो गए। इमाम ज़माना पर लश्कर के सिपाहियों से कहे इनकी गर्दनें काट, ये आज भी इन्हीं पे ईमान रखे हुए हैं। गर्दनें कटनी शुरू हो जाएंगे और इमाम मदीने से अपना इंतकाम लेना शुरू कर देंगे। दुनिया को तो इंसाफ से भर देंगे। हर एक मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। सिर्फ ये नहीं कि उस दौर के हजरत आदम का बेटा हबील उठेगा और वो कबील से बदला लेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मौला अली का बूढ़ा सहाबी था, माविया अपने दरबार में बुला के उसको छड़ियों के साथ मारना शुरू किया। आखिरी सांस अब्दुल्लाह इब्न मसूद की निकल रही थी। या माविया ने करीब आके कहा कैसे मरना चाहता है मेरे हाथों से? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अपनी आंखें खोली, कहा बिल्कुल उसी तरह मरना चाहता हूं जिस तरह कायम के दौर में तू मेरे हाथों से मरेगा। कायम इंतकाम लेना शुरू कर देंगे। इंतकाम कहां से शुरू होगा जी? मदीने से इंतकाम शुरू हो जाएगा। हर एक मकतूल अपने कातिल से, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। एक एक नबी के दौर का उठेगा मजलूम और अपने जालिम से बदला लेगा। क्यों? अदल का दौर आ गया है, अब कसास होगा, तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई महदी के कदमों भी गिरेगा तो माफी नहीं मिलेगी। अब कोई इमाम ज़माना के पांव भी तड़पेगा और फिर आके कलमा भी पढ़ेगा तो उसका कलमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। अब सिर्फ इंतकाम होगा, अब सिर्फ कसास होगा, जमीन पे सिर्फ अदल होगा, जमीन पे सिर्फ इंसाफ होगा। इमाम मदीने से अपने इंतकाम का आगाज करते हुए इमाम अपना लश्कर लेके 10,000 का लश्कर इमाम ज़माना के पीछे होगा। इमाम चलना शुरू हो जाएंगे। दज्जाल को, सुफियानी को खबर होगी कि इमाम मक्का से मदीना की तरफ आ गए हैं। ये निकलेगा शाम से, दमिश्क से, ये बगदाद से होता हुआ दज्जाल और सुफियानी ये मक्का की तरफ इमाम महदी का रास्ता रोकने के लिए बढ़ेंगे। वादी बैदा में दोनों लश्करों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाएगा। इधर से दज्जाल और सुफियानी का लश्कर आ जाएगा, इधर से महदी और महदी का लश्कर आ जाएगा। दोनों लश्कर
फरिश्तों का एक दूसरे के आमने सामने आना होगा, या तलवारों के साथ तलवारें चल रही होगी, शोले भड़क रहे होंगे, सर गिर रहे होंगे, धड़ तड़प रहे होंगे, जमीन पे गर्द उठ रही होगी, या दूर से मशरक से एक घोड़ा सवार गर्द को फाड़े हुए आ रहा होगा और आवाज है महदी तेरे इंतजार में मैं भी बैठा था, मैं भी आ गया हूं। साहबा कहे मौला ये कौन है? फरमाया उठो इस्तकबाल करो, अब्बास अलमदार आ रहा, अब्बास अलमदार आ रहा। वो तलवार जो नुसरत इमाम के लिए करबला में तड़प रही थी, वो नुसरत महदी के लिए बेनियाम हो जाएगी। अब तलवार एक नहीं, तलवारें दो हो जाएंगी, जुल्फकार एक नहीं, जुल्फकार दो हो जाएगी। अब अली के दोनों ही बेटे मैदान जंग में खड़े होंगे, महदी भी सर काट रहा होगा, गाजी भी सर काट रहा होगा, या दज्जाल और सुफियानी के लश्कर को मौत आनी शुरू हो जाएगी। इब्लीस बशर के लिबास में महदी के सामने खड़ा होगा। रखो हदीस की किताबें मेरे सामने, या जो ही दज्जाल और सुफियानी की मौत के बाद इब्लीस इंसानियत के लबादे में महदी का रास्ता रोकने के लिए खड़ा होगा, इस घमसान के रन में गर्द फटेगी, एक तलवार अर्श से जाहिर होगी, आवाज आएगी इस्तकबाल करो अली आ रहा। अब सरकार अमीरुल मोमिनीन आके अपना नेजा इब्लीस के सीने पे मारेंगे। इब्लीस को मौत आएगी अली के नेजे से, इब्लीस मरेगा अली की ज़र्ब से। आज की रात, कल का दिन, कल की रात यहां पे हूं, परसों है मेरी फ्लाइट, प्रोग्राम से एक दिन बाद का रखा भी मैंने इसलिए था। 2 प्रोग्राम और 2 महाफिल में किसी को सवाल हो, वो कल तक हूं मैं यहां पे, कल तक पूछोगे तो सवाल होगा, परसों से करोगे तो गीबत होगी। और मेरे मजहब में सवाल हराम नहीं है, गीबत हराम है। बाद में मैसेज नहीं चलाना, बाद में व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हुआ हूं, जहां कहोगे वहां जवाब देने के लिए तैयार हो। मेरे मौला अली के नेजे के साथ इब्लीस को मौत आएगी। हदीस की किताबें लिखती हैं हर मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। हक बनता था कि अली इब्ने मुलजम से बदला लेते। अली ने इब्लीस को नेजा क्यों मारा? क्योंकि इब्लीस तो अल्लाह का दुश्मन था। अली अल्लाह के दुश्मन को मार के जमाने को बताएगा कि अली कल भी मज़हर खुदा था, अली आज भी मज़हर। मस्जिद हराम की तमीर होगी, मकाम इब्राहिम को अपनी जगह पर रखा जाएगा, और इमाम यहां से निकलते हुए बढ़ेंगे करबला की तरफ। वो जिसे हम करबला कहते हैं उसका पुराना नाम कूफा ही था। ये कूफा के मज़ाफ़ात थे। हदीस की किताब इमाम कूफा की तरफ रुख करेंगे। इमाम का कैपिटल इमाम के दौरे हुकूमत में कूफा होगा। इमाम का बैतुल माल मस्जिद सहला होगी। इमाम कूफा की तरफ बढ़ेंगे। जो ही इमाम कूफा की तरफ जा रहे होंगे, कूफा के करीब इमाम का लश्कर पहुंचेगा, या करबला की तरफ से एक बहुत बड़ा लश्कर, जिनके सरों पे सोने के ताज, तलवारों को अलम किया हुआ, महदी के लश्कर में शामिल होने की तरफ बढ़ रहे होंगे। सरकार कायम अपने घोड़े की रकाबों में खड़े होंगे, यूं उस लश्कर को देखेंगे। इमाम ज़माना के चेहरे पे मुसर्रत आएगी, चेहरे पे खुशी आएगी। सहाबा देख के कहेंगे मौला हमने मक्का से लेके यहां तक आपके चेहरे पे इतना इत्मीनान नहीं देखा, मौला इतना इत्मीनान क्यों है? फरमाया इस्तकबाल करो, हुसैन आ रहे हैं। मौला हुसैन के साथ 72 हुसैन के जानसार तलवारों को अलम किए हुए महदी के लश्कर में आएंगे। मैंने हदीस की किताबों में पूछा, इमाम हुसैन के पीछे हजारों का लश्कर होगा। जो ही मैंने पढ़ा तो मैं लग गया तहकीक में कि करबला में तो 72 शहीद हुए थे, ये हजारों क्यों आ रहे हैं? सरों पे सोने के ताज किस लिए है? जब उलमा की तरफ रुजू किया तो पता चला ये वो लश्कर है जो हुसैन के अज़ादार होंगे, जो अज़ादार ये हुसैन की सूरत में नुसरत इमाम ज़माना करते थे। ये बात ज़हन में रखना, बदला कत्ले हुसैन का सरकारी इमाम ज़माना लेंगे। मुख्तार ने अपनी मोहब्बत दिखाई थी, इंतकाम खून हुसैन अभी बाकी है। एक शख्स ने सवाल किया, इंतकाम खून हुसैन सैयदुल साजिदीन ने क्यों नहीं लिया? हक तो ये बनता था कि अगले इमाम सज्जाद और बेटे भी थे, वो बदला लेते। मुख्तार गैर इमाम था, मुख्तार ने बदला नहीं, अपनी मोहब्बत का सबूत दिया था। सैयदुल साजिद ने दुआ दे दी थी उसे, तुम्हारी वजह से हाशिमियों के दिल ठंडे हुए, हमारे मोहम्मद को तुमने सुकून अता किया। लेकिन कत्ले हुसैन के बदले की नवीद नहीं दी थी कि जहां मुख्तार तो ने कत्ले हुसैन का बदला ले लिया। कत्ले हुसैन का बदला मुख्तार ने नहीं लिया, ना सैयदुल साजिदीन ले सकते थे। अब मैं इस पूरे सवाल को एक जुमले में बंद कर लेता हूं। अगर मौला सज्जाद कत्ले हुसैन का बदला लेते तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेते। बदला है 12वें के जिम्मे, ताकि हर दौर के यजीदियों से बदला ले सके। फिर कूफा में इमाम का दारुल खलाफा, इमाम का कैपिटल कायम होगा। जमीन अदल से भर चुकी होगी, सोना गलियों में होगा और इमाम के नौकरों से ठोकरें मार रहे हो। जमीन अपने खजाने उगल के बाहर निकाल देगी। देने वाले होंगे, देने वालों। गलियों, सड़कों, चौकों, चौराहों में सोना, चांदी और सिक्के, ये कंकर और रेत बन के उड़ रहे हैं। अमन कायम हो जाएगा। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, ये हदीस की किताबों में। शेर भी अपनी फितरत बदल देगा, बकरी भी अपनी फितरत बदल देगी। जहरीले जानवर घरों में पलना शुरू हो जाएंगे। जमीन पे सिर्फ ही सिर्फ अदल होगा, और फिर इमाम ज़माना की हुकूमत का दौर शुरू हो जाएगा।
جو 19 साल 9 महीने तक मुसलसल चलेगा। इसके बाद जो पहली रजअत होगी वो सरकार इमाम हुसैन की होगी। इमाम ज़माना के बाद जो दौरे हुकूमत को संभालेगा, जो हुकूमत को दोबारा संभालेगा, वो करीम करबला हुसैन होंगे। मैंने कल वादा किया था कि मैं तसव्वुर क़यामत भी एक जुमले में आपके सामने पढ़ दूंगा। लोगों ने समझा हुआ ये अल्लाह ने आसमान पे दूध और शहद की नहरें रखी हुई है। ये अल्लाह ने आसमान पे दूध और शहद की नहरें नहीं, जो महदी की तलवार का शिकार हो जाएंगे वो हमेशा की हमेशा दोज़ख में चले जाएंगे, और जो कायम के दौर में और उसकी हुकूमत में जिंदगी गुजारेंगे उसी हुकूमत को जन्नत कहते हैं। जिस इमाम के दौर में जिंदगी गुजारेंगे उसी जन्नत कहते हैं। रजात का अकीदा शिया मज़हब की ज़रूरियात मज़हब में से एक अकीदा है। बस सलाम आखिर के साथ ये जुमला कहूँगा, अपने इमाम से तवस्सुल जारी रखो। रोज़ाना सुबह को उठ के अपने वक्त के इमाम को सलाम किया करो। आँख खुले, अस्सलाम वालेकुम या साहिबल असर व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या बक़ियतुल्लाह। क्यों? सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना। सलाम वालेकुम का मतलब होता है तुम पर सलामती हो, तुम सुन्नत करोगे, इमाम वाजिब करेगा। जब इमाम कह देगा ना तेरी भी सलामती हो, तो फिर उसे उस दिन मौत कैसे आएगी जिसे उसका इमाम ही कह दे कि तेरी सलामती हो। बस तुम जिस दिन चाहो ना कि तुम्हें आज मरना नहीं है, जिस दिन मरने को जीना ना चाहे कि आज मरना नहीं है, आज मौत ना आए, उस दिन अपने वक्त के इमाम को सलाम करो। अपने इमाम की मौजूदगी का इतना यकीन रखो, इतना यकीन रखो कि अपने घर में खाना खाते हुए दस्तरखान में एक फर्द की नशिस्त खाली छोड़ो। बच्चे पूछें ये किसके लिए है, तो कहो इस पे हमारा इमाम आए बैठे। जब तुम अपने बच्चों के सामने ये अमल करोगे तो उन्हें इमाम के होने का यकीन हो जाएगा। उनके बचपन में जहन में आ जाएगा कि हमारे घर में सिर्फ हम ही नहीं रहते, कभी कभी हमारा इमाम भी आता है, हमारे घर में अमूर में, हमारे मामलात में हमारे इमाम भी दाखिल है। तो फिर जहन में रखना, जो बच्चा बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, जब उसे ये पता चल जाए कि इस घर में मेरा इमाम भी मुझे देख रहा है, तो फिर वो गुनाह नहीं करेगा, वो गलती की तरफ नहीं आएगा। आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे गुनाह आपको गलियों में आवाजें दे रहा होगा, लेकिन ये बात जहन में रखना, कोई इमाम तुम्हें देख रहा है। हमारे रोजमर्रा के अमूर रात को हमारे वक्त के इमाम के पास जाते हैं। मौला फरमाते हैं मैं अपने आंसुओं से तुम्हारे गुनाह साफ करता हूँ, मैं अपने शिया के एक अमल पे एक आंसू बहाता हूँ कि हमने तो तुमसे मोहब्बत की थी, तुमने ये यजीदी फेल क्यों किया। कोशिश करना कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे इमाम के आंसू का सबब न बने, तुम्हारे इमाम की मुस्कुराहट का सबब बने। गलियों में चलते फिरते, अपने ऑफिस में जाते हुए, अपनी दुकान खोलते हुए, अपनी गाड़ी में बैठते हुए अपने वक्त के इमाम को सलाम करो। हर मुश्किल अपने इमाम को बताओ, हर तकलीफ अपने इमाम को बताओ, हर गम अपने इमाम को बताओ। जो बात किसी से नहीं कह सकते वो अपने वक्त के इमाम से कहो, क्योंकि इमाम जमीन पर अल्लाह का कान है, इमाम जमीन पर अल्लाह की आंख है। तुम अपने इमाम को बताओगे, तुमने इमाम को नहीं बताया, इमाम अल्लाह ही का कान है। तुमने ये सरगोशी इमाम से नहीं की, अपने परवरदिगार से की है। मैं आखिरी सतर आज की महफिल की इसलिए कहूँगा कि अगर आंसू आंख में एक भी आ जाए तो उस आंसू की मंजिल रुमाले ज़ारा है। एक नतीजा दूंगा, हजरत अब्बास ने चंद घंटे सब्र किया था। फजर अशूरा की फजर से जंग शुरू हुई, असर अशूरा तक चंद लम्हे अब्बास ने सब्र किया, और अब्बास की हालत तारीख ने लिखी है कि क्या हुई थी। जिसने चंद घंटे सब्र किया उसकी हालत ये हुई, तो जो इतने सालों से सब्र कर रहा है, जो इमाम 11,000 16 साल 10 महीने 20 दिन हो गए जिसको गैबत में गए हुए, जो आज तक खून रो रहा है, जिसकी आंखें करबला के इंतकाम के लिए तड़प रही हैं, जो हर रोज कब्जा तलवार पे हाथ रख के कहता है मेरे अल्लाह मुझे इज़्न ज़ुहूर दे ताकि मैं ज़माने से जाके पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या था। एक दरबार में खड़ी रही, एक बाजार में खड़ी रही। जो दरबार में गई वो मुस्तफ़ा की बेटी थी, जो बाजार में गई वो अली की बेटी थी। लेकिन जो दरबार में गई वो चादर पहन के गई थी, जो बाजार में गई वो बगैर चादर के गई थी। जो दरबार में गई उसके हाथ खुले थे, जो बाजार में गई उसके हाथ बंधे थे। जो दरबार में गई वो बेटों के साथ गई थी, जो बाजार में गई वो बहनों के साथ गई थी। अब मैं अगली सत्र कहूंगा, कहां से हाय निकलेगी मुझे नहीं खबर। जो दरबार में गई वो चंद घंटे खड़ी रही, जो बाजार में गई वो कई घंटे खड़ी रही। दरबार वाली चंद घंटों के बाद वापस घर आ गई, जो बाजार में गई वो पूरा साल जिंदान में बैठी रही। एक एक इमाम ने अपने आखिरी वक्त में अपने कायम को याद किया है। जनाब ज़हरा अपनी आखिरी तस्बीह पे कहा करती थी मेरे अल्लाह मेरे बेटे के ज़हूर में जल्दी करना ताकि वो मेरे दुश्मनों से इंतकाम ले सके। सरकार कायम आके मदीने से अपना इंतकाम क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि कायम के दिल में जो सबसे बड़ी हसरत है वो ज़हरा के गम की हसरत है। आयतुल्लाह मरअशी नजफी मजहब जाफरिया का पहाड़ जितना नाम है, उन्होंने एक किताब लिखी है मुकाशिफात मरअशी, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में मुकाशिफात किए, कशफ किया, जिन चीजों को देखा उसे लिखा। जिस इमाम से मुलाकात हुई उन्होंने लिखी, उस किताब में उन्होंने लिखा कि जब मैं इमाम ज़माना से मिला, मेरी इमाम से मुलाकात हुई तो मैं इमाम को पहचान ही नहीं सका। वो कहते कि जब मैं इमाम ज़माना से मिला तो आंखों से खून के आंसू जारी थे।
महर्षि कहते कि इमाम की मुट्ठी बंद थी, हाथ खोलते रोते फिर मुट्ठी बंद कर लेते, हाथ खोलते रोते फिर मुट्ठी बंद कर देते। महर्षि नजफी कहते हैं कि मैंने मुकाशफे में इमाम से पूछा, मौला आपके हाथ में क्या है? इमाम ने अपनी मुट्ठी को खोला तो वो कहते हैं कि मैंने लोहे की चंद मेखें देखी जिनमें कुछ खून लगा हुआ था। महर्षि कहते हैं मैं तड़प गया, मैंने कहा इमाम ये क्या है? इमाम फरमाते हैं महर्षि नहीं पहचाना? मैंने नहीं पहचाना। फरमाया ये वही लोहे की मेखें हैं जो उस दरवाजे पे लगी थी जो ज़हरा के पहलू पे गिरा था, ये वही मेखें हैं जिन्होंने मेरी जद्दा ज़हरा को जख्मी कर दिया था, जिससे मेरी जद्दा का पहलू जख्मी हो गया था। आज भी मेरा कायम तड़प रहा है कि मेरे अल्लाह मुझे इज़्न ज़ुहूर दे, मैं जाके पूछूं कि मेरी माँ के दरवाजे पे आग कैसे लगाई थी, मेरी जद्दा का मोहसन कैसे शहीद किया था। अज़ादारो हम जितना भी रोलें, हम पानी रोएंगे, हम वो हक अदा नहीं कर सकते जो मेरा कायम कर रहा है, जो मेरा मौला कर रहा है। सैयदुल साजिदीन 40 साल रोए थे। एक शख्स ने आके पूछा, मौला शहादत आप आले मोहम्मद का विरसा है? इमाम रो पड़े। इमाम ने शहादत हमारा विरसा है, माएँ बाजारों में लेके जाना हमारा विरसा नहीं, बहनों की रिदाएं देना तो हमारा विरसा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं घर में बैठता हूं, मुझे मेरा लुटा हुआ घर याद आता है, मैं कोई जवान देखता हूं मुझे अकबर याद आ जाता है, मैं किसी बच्चे को देखता हूं मुझे कासिम याद आ जाता है, मैं किसी माँ की गोद में बच्चा देखता हूं मुझे असगर याद आ जाता है। उस सहाबी ने कहा, मौला आप घर में ना बैठा करें, मौला बाजार में आया करें। अब जितनी देर बाजार में रहेंगे लोग आपको मिलेंगे, आपका दिल जग जाएगा, आपका जी लग जाएगा। इमाम कहते कैसे जाऊं बाजार में? मैं बाजार में जाता हूं, मुझे शाम का बाजार याद आ जाता है, मुझे कूफे की गलियां याद आ जाती हैं। आखिर उस सहाबी ने मजबूर कर दिया, बस अज़ादारो आखिरी जुमले कह रहा हूं, कोशिश करना यहाँ सुरमा ज़हरा में चले जाएं। उसने इमाम का हाथ पकड़ा, मदीने के बाजार में लेके आया। इमाम का मदीने के बाजार में आना था, ये सैयदुल साजिदीन का करबला के बाद मदीना के बाजार में पहला कदम था। मदीने के लोगों ने सजाद को देखा, वो तो सजाद 61 हिजरी में जवान गए थे, अब कमर झुकी हुई थी, अब सर के बाल सफेद हो चुके थे, अब दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, अब कमर में खम आ चुका था। इमाम खमीदा कमर के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रहे थे। लोगों ने आके इमाम के कदमों में गिरना शुरू किया। कोई कहता रसूल का बेटा सलाम, कोई कहता ज़हरा का बेटा सलाम, कोई कहता हुसैन का बेटा सलाम। इमाम किसी के सर पे प्यार दे रहे थे, इमाम किसी को दुआएं दे रहे थे, दुआएं देते देते इमाम आगे बढ़ रहे थे। या मदीने के बाजार में एक कसाब अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, उसने इमाम को देखा, उसे जल्दी से अपनी दुकान बंद की, उसने वजू किया, इमाम के कदमों पे हाथ रखे, मौला को सलाम किया। मौला देखते तू कौन है? कहने लगा मौला आपका शिया हूं। फरमाया ये दुकान तेरी है? मौला मेरी दुकान है। क्या बेचता है? मौला मैं गोश्त बेचता हूं। फरमाया शरीयत मोहम्मद में ज़बीहा के अहकाम याद है? कहने लगा हाँ मौला याद है। मौला वहीं पे खड़े हो गए। मौला कहते मुझे अहकाम ज़बीहा सुना। उसे सुजा के शायद रसूल का बेटा मुझसे शरई सवाल कर रहा है। उसने कहा शरीयत मोहम्मदी में जानवर को ज़िबा करने का पहला हुक्म है, जिस जानवर को ज़िबा करो उसे पहले पानी पिला दिया करो। पानी पिलाने का नाम आना था। सैयदुल साजिदीन जमीन पे बैठ गए, रो के कहते लोग जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते हैं, मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारे गए हैं। मैं दूसरी शर्त सुना। उसका दूसरी शर्त यह है जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। इमाम रो कहते लोग जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। मेरी 3 फुफियां सर पे कुरान रख के दरवाजे खेमा पे खड़ी थी, जब मेरे बाबे की गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस दुकानदार ने तड़पना शुरू किया। इमाम ने कहा मुझे तीसरी शर्त सुना। उसने कहा मौला तीसरी शर्त ये है जानवर को जिस छुरी से ज़िबा करो वो छुरी तेज होनी चाहिए। तेरे और मेरे इमाम गश खा गए। रोगी कहते लोग जानवर को तेज छुरी से ज़िबा करते हैं, कुंद खंजर के साथ 13 ज़रबों से मेरे बाबा हुसैन का सर काटा गया। मेरी मां दरवाजे पे कहती रही आहिस्ता खंजर चला, ये गोद ज़हरा का पाला हुआ। मेरे अल्लाह तुझे आले मोहम्मद की इज्जत और इस्मत और तहारत का वास्ता, मेरे अल्लाह हमारा इस महफिल में आना, हमारा इस महफिल में बैठना, हमारा जिक्र अज़कार करना, हमारा आले मोहम्मद के जिक्र में खुश होना, आले मोहम्मद के गम में रोना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला इस जिक्र का सदका हमारे गुनाह ने सगीरा कबीरा माफ़ फरमा, हमारी उन तमाम गलतियों को माफ़ फरमा जो हमारे और हमारे इमाम के दरमियान दूरी की वजह हैं। मेरे अल्लाह इन महाफिल का इंतज़ाम करने वाले बशीर भाई, उनके बेटे मोहम्मद यूसुफ, इस सारे ख़ानदान के रिज़्क़ इज़्ज़त और वक्त में इजाफ़ा फरमा, इनकी मारिफत में इजाफ़ा फरमा, इन्हें हासदीन की हसद से, शरीरों के शर से, दुश्मन के सिर्फ